اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر محمد کاشف سوشیولوجی کے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ پچھلا جو لیکچر ایک سیریز آف لیکچر جو ہم نے اٹینڈ کیے، ان لیکچرز میں ہم نے سوشیولوجی کے بیسک انٹروڈکشن، سوشیولوجی کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز، سوشیولوجی کی نیچر، اس کی امپورٹنس، سوشیولوجی کے اسکوپ، سوشیولوجی کے سبجیکٹ میٹر اور سوشیولوجی کا ریلیشن دوسری سوشل سائنسز اور بالخصوص اکنامکس کے ساتھ اسٹڈی کیا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے ہمارے پرنسپلز آف سوشیولوجی کے کورس کنٹینٹس میں سے، وہ ہے سوشل گروپس اور اس کی ڈفرینٹ ٹائپس۔ سوشل گروپس پر تفصیلی ڈسکشن کرنے سے پہلے جو بات یہاں پر قابل غور ہے وہ ہے سوشیولوجی کا بنیادی مفہوم یا بیسک کنسیپٹ آف سوشل گروپس۔ یعنی جب تک ہم سماجی گروہ یا سوشل گروپس کے بنیادی تصور کو نہیں سمجھ لیتے، ہم اس موضوع پر تفصیلاً بات چیت نہیں کر سکتے، چونکہ سوشل گروپ جو ہے وہ سوشیولوجی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم تصور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہر وقت لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن سوشیولوجی کی زبان میں لوگوں کا یا افراد کا ایک خاص جگہ پر اکٹھا ہو جانا سماجی گروہ یا سوشل گروپ کے زمرہ میں نہیں آتا۔ سوشل گروپ سوشیولوجی میں ایک براڈر پیراڈائم ہے، اس کا اپنا ایک مخصوص تصور ہے۔ وہ کیا ہے کہ سوشل گروپ از اے کلیکشن، یعنی سوشل گروپ یا سماجی گروہ ایک مجموعہ ہے، کلیکشن آف انڈیویژولز، یعنی افراد کا مجموعہ ہے۔ کتنے افراد؟ دو یا دو سے زیادہ افراد۔ who frequently interact with each other، جو ایک دوسرے کے ساتھ محو تفاعل ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں، بات چیت کریں، گفت و شنید کریں۔ شیئر اے سینس آف بلانگنگ، اور ان کا آپس میں تعلق ہو۔ اینڈ ہیو اے فیلنگ آف انٹر ڈیپینڈنس، اور ایک دوسرے پر منحصر ہو۔ یعنی افراد کا کسی جگہ پر اکٹھا ہو جانا سوشل گروپ کے زمرہ میں نہیں آتا، سماجی گروپ کے زمرہ میں نہیں آتا۔ سماجی گروہ تب بنے گا، افراد کا وہ مجموعہ سوشل گروپ یا سماجی گروہ تب ہی تصور ہوگا جب وہ افراد ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں گے، ان کے درمیان کوئی تعلق ہوگا اور وہ ایک دوسرے پر منحصر ہوں گے، تو تب ہی دو یا دو سے زیادہ افراد کے اس مجموعے کو سماجی گروہ تصور کیا جائے۔ تو عام الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشل گروپ از اے کمبینیشن آف ٹو اور مور دین ٹو پرسنز۔ سوشل گروپ is a collection of two or more than two persons. Social group is an accumulation of two or more than two persons.
and social group is a gathering of two or more than two persons who frequently interact with each other, share a sense of belonging, and having a feeling of interdependence on each other. आम अल्फाज में ज़रा सुनिएगा कि समाजी ग्रोह दो या दो से ज़्यादा अफराद या अरकान का मजमुआ। ये मजमुआ या ये अफराद आपस में गुफ्तगू करते हैं। ये अफराद एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ कायम किए हुए होते हैं और ये अफराद एक दूसरे पर मुनहसर। चुनांचे दो या दो से ज़्यादा अरकान का ऐसा मजमुआ जो एक दूसरे के साथ गुफ्तगू भी करे, जिनका आपस में ताल्लुक़ भी हो, जो एक दूसरे पर मुनहसर भी हों, उन अफराद के मजमूए को हम सोशल ग्रुप या समाजी ग्रोह कहेंगे। अगर लोग एक जगह पर इकट्ठे हैं तो अफराद का इकट्ठा होना सोशल ग्रुप के समाजी ग्रोह के ज़मरे में नहीं आता। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि सोशल इंटरेक्शन इज़ वन ऑफ द प्राइम एंड बेसिक कंडीशन फॉर सोशल ग्रुप, कि जब तक वो दो या दो से ज़्यादा अरकान गुफ्तगू नहीं करेंगे हम उस मजमूए को सोशल ग्रुप या समाजी ग्रोह तसव्वुर नहीं करेंगे। इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि सोशल ग्रुप इज़ अ गैदरिंग ऑफ two or more than two people. It's a combination. It could be a club. It could be a regular gathering of friends. It could be a people who work together, or it could be a collection of two or more than two persons who share a hobby with each other. जब दो या दो से ज़्यादा अरकान एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, गुफ्तो शनीद करेंगे, बातचीत करेंगे, गपशप करेंगे, तो उसके नतीजे में समाजी ग्रोह बनेगा। अगर दो या दो से ज़्यादा अरकान मौजूद हैं लेकिन उनके दरमियान गुफ्तगू नहीं है तो अरकान का वो मजमुआ सिर्फ मजमुआ ही होगा, जबकि उसे समाजी ग्रोह या सोशल ग्रुप नहीं करेंगे। ये था समाजी ग्रोह या सोशल ग्रुप का बुनियादी मफ़हूम। अब हम कुछ डेफिनेशंस पर भी बात करते हैं। मुख्तलिफ माहिरीन ने समाजी ग्रोह को अपने अपने अंदाज और अल्फाज में डिफ़ाइन किया है। तमाम अरकान का मरकज़ी मौज़ूए बहस समाजी ग्रोह ही होगा, उनका पर्सपेक्टिव सेम होगा, लेकिन फ़र्क सिर्फ अल्फाज और उनके ज़ाविये का है। तो सबसे पहले हैरी एम जॉनसन की हम डेफिनेशन देखते हैं। हैरी एम जॉनसन समाजी ग्रोह को डिफ़ाइन करते हुए, सोशल ग्रुप को एक्सप्लेन करते हुए लिखते हैं कि अ सोशल ग्रुप इज़ अ सिस्टम ऑफ सोशल इंटरेक्शन। सिंपल डेफिनेशन, जस्ट इन अ फ्यू वर्ड्स, लेकिन एक कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन हैरी एम जॉनसन ने बयान की है। उसके मुताबिक समाजी ग्रोह दरअसल समाजी तफ़ाउल का एक निज़ाम, जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि जब तक दो या दो से ज़्यादा अरकान एक दूसरे के साथ गुफ्तगू नहीं करेंगे तब तक अफराद का वो मजमुआ सोशियोलॉजी की ज़ुबान में सोशल ग्रुप तसव्वुर नहीं होगा। तो इसी बुनियाद को पकड़ते हुए हैरी एम जॉनसन ने लिखा है कि समाजी ग्रोह दरअसल समाजी तफ़ाउल या दो से ज़्यादा अरकान के दरमियान गुफ्तगू का एक मुनज़्ज़म निज़ाम। उसके बाद मार्शल जॉन्स लिखते हैं कि अ सोशल ग्रुप इज़ अ कॉम्बिनेशन of two or more people between whom there is an established pattern of social interaction। बहुत खूबसूरत डेफिनेशन, बहुत खूबसूरत तारीफ कि समाजी ग्रोह दो या दो से ज़्यादा अरकान का मजमुआ, बिटवीन होम जिनके दरमियान देयर इज़ एन एस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ सोशल इंटरेक्शन, जिनके दरमियान गुफ्तगू का एक मुनज़्ज़म निज़ाम वक़ूफ़ पज़ीर। आपने भी
उसी तसव्वुर को आगे बढ़ाया कि समाजी ग्रोह दो या दो से ज़ायद अरकान का ऐसा मजमुआ है जिनके दरमियान मुनज़्ज़म गुफ्तगू या तफ़ाउल होता। जब तक अरकान एक दूसरे के साथ गुफ्तगू नहीं करेंगे तब तक अरकान का वो मजमुआ समाजी ग्रोह नहीं कहलाएगा। मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि सोशल ग्रुप इज़ अ कम्बिनेशन, इज़ एन अकोमोलेशन, इज़ अ कलेक्शन, इज़ अ गैदरिंग ऑफ टू और मोर देन टू पर्सन्स। कौन से टू और मोर देन टू पर्सन? बिटवीन होम, जिनके दरमियान देयर इज़ एन एस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ सोशल इंटरेक्शन, कि जिनके दरमियान गुफ्तगू का एक बाज़ाब्ता अमल वकूअ पज़ीर हो। अफराद का वो मजमुआ समाजी ग्रोह तसव्वुर होगा। अगर दो या दो से ज़्यादा अरकान मौजूद होंगे लेकिन गुफ्तगू नहीं हो रही उनके दरमियान, तो अरकान का वो मजमुआ समाजी ग्रोह या सोशल ग्रुप नहीं हो सकता। उसके बाद एक और डेफिनेशन देखते हैं, बात मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। डायना कैंडल लिखती हैं कि अ ग्रुप दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पीपल, के ग्रोह या समाजी ग्रोह दो या दो से ज़्यादा अरकान पर मुश्तमिल होता है। हु इंटरेक्ट फ्रीक्वेंटली, जो अक्सर अमूमन एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं। एंड शेयर अ कॉमन आइडेंटिटी, और जिनकी एक ही पहचान हो। एंड फीलिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंस, और उनके दरमियान एक दूसरे पर मुनहसर हो या इन्हसार के जज्बात भी मौजूद हो। आपने भी बात वही, आपने अपनी किताब सोशियोलॉजी इन आर टाइम्स में इस डेफिनेशन को मुरतब किया और आपने समाजी ग्रोह को डिफ़ाइन करते हुए, उसकी तारीफ़ करते हुए लिखा कि समाजी ग्रोह दो या दो से ज़्यादा अरकान का वो मजमुआ जिनके दरमियान अक्सर व बेशतर गुफ्तगू का अमल वकूअ पज़ीर होता हो, जो एक ही शनाख्त रखते हों और एक दूसरे पर मुनहसर भी हों। तो अफराद का वो मजमुआ या दो से ज़ायद अरकान का वो मजमुआ समाजी ग्रोह या सोशल ग्रुप तसव्वुर होगा। तो बात वाज़ेह हो गई कि सोशल ग्रुप दो या दो से ज़्यादा अरकान का मजमुआ है। एक अकेला फ़र्द समाजी ग्रोह या सोशल ग्रुप या ग्रुप डेवलप नहीं कर सकता, वो एक इंडिविजुअल होगा। जबकि ग्रुप जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स है, दो या दो से ज़्यादा अरकान का मजमुआ है जिनके दरमियान गुफ्तगू भी होती है, जो एक कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी जिनकी पहचान भी एक है, जो एक दूसरे पर मुनहसर भी रहते हैं। तो ये हो गया समाजी ग्रोह का बुनियादी मफ़हूम। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सोशल ग्रुप्स। अब ये एलिमेंट्स क्या? इन एलिमेंट्स को हम बेसिक कंडीशंस ऑफ सोशल ग्रुप का नाम भी देते हैं। ये बेसिक कंडीशंस क्या हैं? ये दरअसल बुनियादी शराइत हैं कि अगर ये चीज़ें होंगी तो सोशल ग्रुप होगा। अगर ये बेसिक कंडीशन, ये बुनियादी शराइत पूरी नहीं होती तो अफराद का वो मजमुआ कभी भी ग्रुप तसव्वुर नहीं होता। ये दरअसल वो लवाज़मात हैं समाजी ग्रुप के जिनके बगैर अफराद का मजमुआ समाजी ग्रोह तसव्वुर नहीं हो सकता, सोशल ग्रुप नहीं हो सकता। जिस तरह से खाने में नमक ना हो तो खाना बेजायका होता है, खाना अच्छा खाना तसव्वुर नहीं होता, बिल्कुल उसी तरह से अगर कोई भी समाजी ग्रोह या सोशल ग्रुप इन बुनियादी शराइत पर पूरा नहीं उतरता तो उस अरकान के मजमूए को हम सोशल ग्रुप तसव्वुर नहीं कर सकते। वो बुनियादी शराइत क्या है? दरअसल 4 बुनियादी शराइत हैं समाजी ग्रोह की, और अगर कोई भी अफराद का मजमुआ इन बुनियादी शराइत पर पूरा उतर आए तो वो सोशल ग्रुप तसव्वुर होगा। अगर कोई अरकान का मजमुआ इन 4 बुनियादी शराइत पर पूरा नहीं उतरता तो गोया हम उस अफराद के मजमुए को सोशल ग्रुप नहीं मानेंगे। सबसे पहली शर्त, 2 और मोर देन 2 पर्सन्स, ये सबसे प्राइम और बेसिक कंडीशन है सोशल ग्रुप की। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि एक अकेला फ़र्द ग्रुप नहीं बना सकता।
ग्रुप के लिए लाजिम है कि 2 अफराद हों या फिर 2 से ज़्यादा अफराद। अगर 2 या 2 से ज़्यादा अफराद होंगे तो ग्रुप की इब्तदा हो सकती है। तो बुनियादी शर्त 2 या 2 से ज़्यादा अफराद का होना। दूसरी बुनियादी शर्त कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी अरकान के दरमियान गुफ्तगू का ज़रिया जो होगा वो कॉमन लैंग्वेज होगा, कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। हमने कहा कि तब तक अफराद का वो मजमूआ समाजी गिरोह तस्वुर नहीं हो सकता जब तक वो अफराद एक दूसरे के साथ गुफ्तगू ना करें। अब गुफ्तगू के लिए लाजमी है कि उन दोनों के दरमियान गुफ्तगू के लिए जो ज़रिया ज़बान लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाए वो कॉमन हो, सेम हो। अगर एक फ़र्द जापानीज़ बैठा है और दूसरा चाइनीज़ बैठा है तो जब उनका कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन या गुफ्तगू का ज़रिया ज़बान एक जैसा नहीं होगा वो दोनों गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे, और जब गुफ्तगू नहीं होगी तो सोशियोलॉजी की ज़बान में वो अफराद का मजमूआ सोशल ग्रुप नहीं होगा। वो तब ही सोशल ग्रुप तस्वर होगा जब कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन या एक जैसी ज़बान होने के बुनियाद पर वो एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर सके, जैसे मैं और आप एक दूसरे के साथ इस वक्त गुफ्तगू के अमल में मसरूफ़ हैं। तो सबसे पहली कंडीशन 2 या 2 से ज़्यादा अरकान हों। दूसरी कंडीशन उन दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू का ज़रिया हो वो कॉमन लैंग्वेज हो। तीसरा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप अमंग देम। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप यानी दो तरफा ताल्लुकात, यानी वो दोनों एक दूसरे के साथ बात भी करना चाहते हैं। अगर दोनों एक दूसरे के साथ बात ही नहीं करना चाहते, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू चैट विद ईच अदर, देन हाउ देयर कुड बी अ मैनेज्ड सोशल इंटरेक्शन। जब सोशल इंटरेक्शन या गुफ्तगू नहीं होगी तो अफराद का वो मजमूआ समाजी गिरोह नहीं तस्वर होगा। तो ज़रूरी है कि दोनों के दरमियान कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन भी हो, और कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के साथ साथ दोनों एक दूसरे के साथ गुफ्तगू भी करना चाहते हैं। तो तब ही जाकर वो दो अफराद एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करेंगे, और जब गुफ्तगू करेंगे तो नतीजतन समाजी ग्रुप या सोशल ग्रुप डेवलप होगा। चौथी कंडीशन, 3 मैंने आपको बता दी कि 2 या 2 से ज़्यादा अरकान हों, उनके दरमियान गुफ्तगू का ज़रिया ज़बान कॉमन हो, दोनों एक दूसरे के साथ बात भी करना चाहते हैं। और चौथी कंडीशन ये है कि इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर एंड ब्रेन ऑफ द पर्सन, कि दोनों एक दूसरे पर गुफ्तगू के दौरान दोनों एक दूसरे को मुतासिर भी करें। फॉर एग्जांपल, मैं आपको सलाम करता हूँ, अब सलाम किसी भी गुफ्तगू का आगाज़ होता है। सलाम और उसका जवाब देने के लिए 2 अफराद का होना ज़रूरी, फिर दोनों सलाम का मतलब समझते हों, दूसरा सलाम का जवाब देना चाहता हो, और फिर जब पहला बंदा सलाम करेगा तो दूसरा बंदा फ़ौरन ही ज़हनी तौर पर उस सलाम का असर कबूल करेगा, उसका जहन फ़ौरन से उस सलाम को प्रोसेस करेगा। मुतासिर होने के बाद वो बंदा उस सलाम का जवाब वालेकुम अस्सलाम की शक्ल में देगा, और अगर देगा तो गुफ्तगू का अमल मुकम्मल हो जाएगा, और जब गुफ्तगू का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो फिर उस 2 अफराद को हम सोशल ग्रुप मान लेंगे। ठीक, तो ये हैं समाजी ग्रुप के बुनियादी लवाजमात या बेसिक कंडीशंस ऑफ सोशल ग्रुप। अगर कोई भी अफराद का मजमूआ इन बुनियादी तसव्वुरात पर पूरा उतरता है तो अफराद के उस मजमूए को हम समाजी ग्रोह मान लेते हैं। अगर अफराद का कोई भी मजमूआ इन बुनियादी तसव्वुरात पर, इन बेसिक कंडीशंस पर, बुनियादी लवाजमात पर, इन बेसिक शराइत पर पूरा नहीं उतरता तो हम अफराद के उस मजमूए को सोशल ग्रुप या समाजी ग्रोह नहीं मानेंगे। नेक्स्ट मौजू है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल ग्रुप, कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में
समाजी ग्रोह को क्या अहमियत हासिल है, क्यों अहमियत हासिल है, और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में समाजी ग्रोह क्या किरदार सरअंजाम देता है। इसे हम क्वेश्चन आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल ग्रुप लिखें तो तब भी यही जवाब लिखेंगे। क्वेश्चन आ जाता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल ग्रुप लिखें तो तब भी यही जवाब लिखेंगे। क्वेश्चन आ जाता है कि फंक्शंस ऑफ सोशल ग्रुप लिखें तो तब भी यही जवाब लिखेंगे। सबसे पहली बात, सबसे पहली इम्पोर्टेंस सोशल ग्रुप की कि इंसान एक समाजी हैवान है। कोई भी बंदा नॉर्मली अकेला ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, इसलिए उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपनी ज़रूरियात पूरे करने के लिए, अपनी जज्बात को, एहसासात को, महसूसात को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए दूसरे के साथ ताल्लुक़ कायम करना पड़ता है, और नतीजतन इंसान इस कायनात में ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो पाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल ग्रुप में ये कि इंसान समाजी हैवान है, इसलिए अकेला ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तो मैं एक एक पॉइंट करके आपको बताऊंगा और आपने ज़रा गौर से इसको सुनना। सबसे पहली इम्पोर्टेंस सोशल ग्रुप की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, हमारी माशरती ज़िंदगी में ये है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि इंसान के इस कायनात में अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए ग्रोही ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। आपको जितनी भी खूबसूरत लोकेशन दे दी जाए, आपको तमाम तर बुनियादी ज़रूरियात दे दी जाएं, आपको हर तरह की आसाइशात सहूलियात दे दी जाएं, लेकिन आपको कहा जाए कि आपने उस लोकेशन पर अकेला रहना है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंसान जो कि समाजी हैवान है वो अकेला ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। इंसान उन सहूलियात और आसाइशात और बेहतरीन लोकेशन होने के बावजूद भी वहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकेगा। तो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि इंसान दूसरे इंसानों के साथ मिलजुल कर रहे। दूसरी इम्पोर्टेंस, ग्रुप डेवलप ह्यूमन पोटेंशियल, कि हम में बहुत सारी काबिलियतें मौजूद होती हैं, लेकिन वो काबिलियतें तब ही निखर कर सामने आती हैं जब हम दूसरों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। वो हमारी उन पोटेंशियल्स को, उन काबिलियतों को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उन आइडेंटिफाइड पोटेंशियल की बुनियाद पर हम अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाते हैं। ग्रुप हेल्प इन सोशलाइजेशन, कि समाजी ग्रोह या वो लोग जिनके साथ हम रहते हैं, जिस ग्रोह का हम हिस्सा होते हैं, वो ग्रोह हमारी तरबियत करता है और हमें माशरे में जीने के काबिल बनाता है। प्रोविज़न ऑफ बेसिक नीड्स, हमारी बहुत सारी ज़रूरियात हम अकेले पूरा नहीं कर सकते, बल्कि वो ज़रूरियात हम दूसरों के साथ मिलजुल कर पूरा करते हैं। तो ग्रुप हमारी बुनियादी ज़रूरियात को भी पूरा करता है। इसके साथ साथ सोशल ग्रुप डेवलप ह्यूमन पर्सनैलिटी। ह्यूमन पर्सनैलिटी इज़ ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन। अब जो बंदा जितना मैनर्सफुल होगा वो उतना ही आला शख्सियत का हामिल होगा। जो बंदा जितना कैलकुलेटेड होगा उसकी शख्सियत उतनी ही मुतासर कुन होगी। जो बंदा जितना वेल मैनेज्ड और डिसिप्लिन्ड होगा वो बंदा उतना ही दूसरों को भाएगा। और ये सारी चीज़ें कैसे डेवलप होती हैं? ये सारी चीज़ें सोशलाइजेशन से डेवलप होती हैं। और सोशलाइजेशन कौन करता है? वो लोग करते हैं, वो सोशल ग्रुप करता है जिसके साथ हम रह रहे होते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के अदब व आदाब, अखलाकियात, अकायद, अक़दार, हमारा मज़हब, ज़ुबान, ये सब कुछ हम समाजी ग्रोह से सीखते हैं। दरअसल ये हमारी तहजीब, हमारा सकाफ़त है, और ये सकाफ़त ग्रुप के ज़रिए एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता है। और कॉन्टीन्यूटी इन ह्यूमन रेस, कि नस्ल इंसानी की बका का ज़ामिन भी वो ग्रुप ही है जिस ग्रुप के साथ हम रह रहे होते हैं, जिस ग्रुप के साथ हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अगर इंसान मिलजुल कर ना रहें, एक दूसरे के साथ रिश्ता कायम ना करें, मर्द औरत के साथ और औरत मर्द के साथ जायज़ जिनसी ताल्लुकात का क़याम मुमकिन ना बनाए, तो नस्ल इंसानी आगे नहीं बढ़ सकती। नस्ल इंसानी की बका के लिए लाजिम है कि लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, समाजी ग्रोह की शक्ल में रहें, एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करें, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करें, तब ही हम इस कायनात में सर्वाइव कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अपने अगले लेक्चर में हम एक नए मौजू के साथ
حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم.